Hello guys, good morning and welcome to the current affairs class. Let's crack UPSC CSE with India's largest learning platform, that is Unacademy. On Unacademy, you have many benefits. First and most important benefit of Unacademy is that you will get unlimited or you will get daily live classes, which are very important and very crucial for your pre as well as mains preparation. Then we also provide you structured courses. These structured courses are mainly available on Plus and Iconic. So if you want to study in a structured manner, you should be on the Plus or Iconic platform. Then I am conducting live tests every day at 8 a.m. on Unacademy Learning app and every day at 4 p.m. on Unacademy Learning app. So you should attend both these tests live, and that too by entering into the test at sharp time. Then everything that is happening on Unacademy is in recorded format, so you will get unlimited access to each and everything, guys. Let me know, am I audible and visible? For that, you need to download the Unacademy Learning app either from the Google Play Store or from the App Store. Is that clear? Then next, this is about me, guys. You already know about me. This is my Telegram channel. Please subscribe to this Telegram channel. This is my Unacademy profile. Please follow me on Unacademy. Dedicate your hats to me on Unacademy. And yes, very important, don't forget to use SKUS code for 10% discount on Unacademy or anywhere. Wherever Unacademy asks you for a code, you should use this code. These are India's top educators who will help you to crack UPSC CSE examination. I am already one of them, guys. Thank you very much. On Unacademy, we provide you comprehensive syllabus coverage. Here you can see this is the comprehensive coverage of the syllabus that is provided by Unacademy. Very good morning, Aisha. When you are going on Plus, guys, you will get live class, test series, unlimited practice and structured schedule. And these are the plans that are available for the Plus, guys. You can see this. But if you use this code SKUS, you will get 10% discount. It is a viral code of success. Much better, Aisha. In morning there was an issue, but slowly it is improving. जैसे जैसे आफ्टरनून हो रही है, I am feeling better. So मैंने मॉर्निंग का भी 1 hour and 15 minute का क्लास लिया, उसके बाद और एक क्लास, मतलब अब तक दो घंटे की क्लास मैंने ले ली है. ठीक है. जब आप प्लस पे जाते हो तो आपको एसक्यूएस वायरल को 10% डिस्काउंट दिलाता है, एंड यू विल पे लेस फॉर द Plus. When you are going on Iconic, guys, all the benefits of Plus are there always, but उसके साथ साथ you will get a personal coach, daily means question and answer practice, study planner and personalized feedback. तो ये चार चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है किसके साथ? Iconic के साथ. Good morning, Archana. These are the three plans that are available with Iconic, and if you start using SKUS code, it will give you 10% discount and you can enjoy Iconic in less. Then these are the different plans for optional. Even in these plans, SKUS viral code of success gives you 10% discount. Unacademy Combat, the third Unacademy Combat is on 3rd January 2021. गाइस, तो अपना जो नया साल है ना, वो स्टार्ट कीजिए Unacademy Combat के साथ और win many prizes as well as most important, it will help you to practice. Is that clear? Then your prelims 21 की prelim 27 जून को, it is just like 6 months away. For that we have launched these two batches on Plus on 28th of December. So don't forget to join these two batches. Sir, before start, give a little guidance on disaster management. Aisha Sheikh, we can do one thing. I will come up with a special disaster management class. छोटा सा टॉपिक है, मैं अच्छे से वो डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा ही दूंगा ना आपको. अब इस क्लास में हम एक डिजास्टर की बात करने वाले हैं, और वो भी आपके जम्मू कश्मीर का जो फॉर्मर पार्ट था लद्दाख, वहां पे जिस तरह के डिजास्टर आते हैं ना, उनके रिगार्डिंग ही बात करने वाले. डोंट वरी अबाउट दैट. डोंट वरी, आई विल कवर योर डिजास्टर मैनेजमेंट. इज दैट क्लियर? ये हमने 6 मंथ की बैच कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं. वी ऑल्सो लॉन्च 1 year बैच कोर्सेज एंड वी ऑल्सो लॉन्च 2 year बैच कोर्सेज. क्लियर? हेलो कांची. If you are planning to go on Iconic, guys, be there as soon as possible because there is a proposed price hike of the Iconic. तो अगर आपको कम पैसे में Iconic एंजॉय करना है तो you should go there right now. Good morning, Ramanji. Everyone, Aisha, why you are not attending my 8 AM live class? लाइव टेस्ट आपको अटेंड करनी है. अच्छा, आज 4 PM को आयशा शेख, यू विल बी इन माय मॉक टेस्ट. मैं एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करने वाला हूँ 4 PM को. आप इस मॉक टेस्ट को देने आज 4 PM को शार्प आओगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे. इज दैट क्लियर आयशा? चलिए आगे. अब देखिए, ये एक्चुअली लद्दाख में ये जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हुआ ना गाइस, दिस ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट is a very important topic.
for your prelims 2021 as well as for your mains examination. This is very important. This falls under the physical geography part. क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पेज पे था, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस। आज मैं आपको ये टॉपिक इतना अच्छे से और प्रॉपर वे से कर दूंगा ना, प्रॉपर वे से कर दूंगा सुब्रतो एंड आनंद, गुड मॉर्निंग, कि मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। अब देखते हैं, देखिए पहला पॉइंट था, लद्दाख में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हुआ था। ये पहला पॉइंट याद रखिए। और ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट स्पिल ओवर की वजह से नहीं हुआ, नो, इट डिडंट टुक प्लेस बिकॉज ऑफ स्पिल ओवर। ये हुआ टनलिंग ड्रेनेज प्रोसेस की वजह से, ये हुआ टनलिंग ड्रेनेज प्रोसेस की वजह से। तो देखिए, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट एक तो स्पिल ओवर से हो सकता है, एक तो स्पिल ओवर से हो सकता है, या फिर टनेलिंग ड्रेनेज प्रोसेस से हो सकता है। दोनों में से किसी भी एक रीजन की वजह से ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हो सकता है। अब आप पूछोगे सर हमें ये स्पिल ओवर क्या है बताओ, चलिए हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। देख लीजिए, अब मैं आपको स्पिल ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्पिल ओवर इसमें कैसे ले, अब सपोज इस बॉटल में मैंने पूरा नेक टू नेक पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इस नेक टू नेक पानी भरे हुए बॉटल में अगर मैं ये पेन डाल दूं तो पानी क्या हो जाएगा, वाटर विल स्पिल ओवर, राइट, वाटर विल स्पिल ओवर, इसे कहते हैं स्पिल ओवर। मतलब अगर कोई ग्लेशियल लेक अपने रिम तक फिल हुआ है और उस ग्लेशियल लेक में कोई स्टोन आ जाए, कोई लैंडस्लाइड आ जाए, या कोई ग्लेशियर आकर गिर जाए, तो वो लेक क्या होगा, उस लेक का स्पिल ओवर होगा, वो पानी उस लेक में से बाहर आएगा, उसी को हम कहेंगे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, तो उसे कहते हैं स्पिल ओवर। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। दूसरा होता है टनलिंग ड्रेनेज प्रोसेस। अब देखिए ये ग्लेशियल लेक है सपोज, ठीक है, ये जो ग्लेशियल लेक है इट इज मेड अप ऑफ ग्लेशियर। तो कभी कभी क्या होता है, इस ग्लेशियल लेक के नीचे से टनल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और उस टनल में से ग्लेशियल लेक का वाटर क्या होने लगता है, ड्रेन होने लगता है। तो उस टनलिंग प्रोसेस से भी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हो सकता है। तो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट अगर ऊपर से हुआ तो उसे स्पिल ओवर करोगे, और नीचे से हुआ टनल्स के थ्रू तो उसे आप कहोगे टनलिंग ड्रेनेज प्रोसेस। अब ये डिटेल में आपको समझाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अब आपको एक क्रूड आइडिया आई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिल ओवर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टनलिंग ड्रेनेज प्रोसेस। अगर आपको इसकी प्रॉपर आइडिया आ गई है, देन आई विल गो अहेड। तो गाइस मुझे पहला पॉइंट बताइए कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट किस वजह से हो सकता है। इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ द स्पिल ओवर, और इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ द टनलिंग ड्रेनेज प्रोसेस। ये इस स्लाइड से हमें इतना समझना था। चलिए आगे, अब मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये आपको सारी चीजें, इसकर क्या होते हैं आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, किटल लेक क्या होते हैं आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एंड मोरेन क्या होता है आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा है, ड्रमलिंग फील्ड्स क्या है आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा है, एंड मोरेन आपने पढ़ा हुआ है, कार्नेस क्या होते हैं आपने पढ़ा है, ग्राउंड मोरेन आपने पढ़ा है, उसके बाद आउटवॉश प्लेन्स भी आपने पढ़ा हुआ है। आई होप आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा है, नीलम एक्सप्लेन किया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको ये बता दूंगा, मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है। देखिए अब ये लेक है, या हम ये मोरेन है, ये एंड मोरेन है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ग्लेशियर है ये अगर एंड मोरेन है, तो ये ग्लेशियर एक्चुअली यहाँ पे था, दिस ग्लेशियर वॉज अप टू दिस पॉइंट, हम ये कह सकते हैं क्या। मुझे अब इनके आंसर चाहिए जल्दी जल्दी आपके यहाँ, यस और नो में। ये ग्लेशियर जो रिट्रीट हो रहा है ना, सपोज ये 2020 है, 2020 में ग्लेशियर की बाउंड्री यहाँ पे है, तो 1920 में क्या हम ये कह सकते हैं कि ग्लेशियर यहाँ पे था, ग्लेशियर की बाउंड्री यहाँ तक थी, क्या हम ये कह सकते हैं, चलो बोलो जल्दी। यस हम कह सकते हैं, क्योंकि मोरेन यहाँ पे है ना,
ये मोरेन मतलब क्या है कि पूरा कचरा जब ग्लेशियर फ्लो होता है ना, मूव होता है, तो वो ग्लेशियर क्या करता है, इरोजन करता है और अपने सामने जो भी डेब्रिस होगा उसे कैरी करता है, आगे आगे लेकर जाता है। वो डेब्रिस जब एक जगह पे डिपॉजिट हो जाता है ना, उसे हम मोरेन कहते हैं। तो ओरिजिनली ग्लेशियर 1920 में यहाँ था। अब ये ग्लेशियर क्लाइमेट चेंज की वजह से रिसीड हो रहा है, रिट्रीट हो रहा है। अब ग्लेशियर यहाँ पे है। जब ग्लेशियर रिट्रीट हुआ ना, जब ग्लेशियर रिट्रीट हुआ, तो इस ग्लेशियर के इरोजन की वजह से यहाँ पे आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन गए, डिप्रेशन जैसे, जहां पे वाटर अब डिपॉजिट हो रहा है, तो उसकी वजह से ये लेक बना। तो हम इस लेक को कहेंगे ग्लेशियल लेक। ये जो आपको यहाँ पे लेक दिख रहा है, इसे आप कहोगे ग्लेशियल लेक। अब यहाँ एक बात याद रखिए, ये लेक बना ही क्यों है, क्योंकि इसके सामने मोरेन है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्योंकि ये मोरेन इज एक्टिंग एज अ डैम, इट इज एक्टिंग एज अ ऑब्स्टेकल, जिसकी वजह से वाटर निकल नहीं जा रहा है, वाटर वहां पे डिपॉजिट होके रह रहा है। तो एक रीजन होता है, ग्लेशियर लेक बनने के दो रीजन होते हैं। एक तो आइस की वजह से वो डैम हो जाता है, या फिर मोरेन की वजह से डैम हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो इमेज में आपको लेक दिख रहा है, दिस इज अ ग्लेशियर लेक एंड इट इज डैम्ड बाय द मोरेन। तो हम इस लेक को कहेंगे मोरेन डैम। हम इस लेक को क्या कहेंगे? इट इज अ मोरेन डैम्ड लेक। इट इज अ मोरेन डैम्ड लेक। इज दैट क्लियर? अब सपोज गलती से इस ग्लेशियर का ये इतना टुकड़ा जो है ना, ये लार्ज वाला पार्ट ये टूट गया और ये ग्लेशियर एकदम फास्ट यहाँ से रॉल होते होते इस लेक में आ गया। अब इतना बड़ा ग्लेशियर का पार्ट अगर इस लेक में आ गया, तो ये लेक का जो पानी है स्पिल ओवर होकर आगे निकल जाएगा, 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 स्पिल ओवर होकर आगे निकल जाएगा। ठीक है? अब जैसे ही आपका ये स्पिल ओवर होकर आगे निकल जाएगा, जब ये स्पिल ओवर हो रहा है ना, तो इस मोरेन में डेब्रिस है, तो इस डेब्रिस को भी ये वाटर लेकर जाएगा। ये हुआ स्पिल ओवर आउटबर्स्ट ऑफ ग्लेशियल लेक। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट बिकॉज ऑफ द स्पिल ओवर। समझ में आया? ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट बिकॉज ऑफ द स्पिल ओवर। ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। अब ये स्पिल ओवर आपका ग्लेशियर की वजह से भी हो सकता है या लैंडस्लाइड की वजह से भी हो सकता है। अगर लैंडस्लाइड हो गई तो एकदम से बहुत सारा कंटेंट क्या हो जाएगा, लैंडस्लाइड का इस वाटर में आ जाएगा, फिर से इसका स्पिल ओवर होगा, 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 स्पिल ओवर होगा। इसे भी आप कहोगे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड। इसे भी आपने क्या कहा? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड। तो मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताया कि ग्लेशियर लेक कब बनते हैं, पता है आपको? ग्लेशियर लेक्स आर फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर्स रिसीड। ग्लेशियर लेक्स आर फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर्स रिट्रीट। ओके। एंड सेकेंड, ग्लेशियर लेक्स दो तरीके से बनते हैं। एक तो ग्लेशियर लेक मोरेन डैम्ड भी हो सकते हैं, या फिर ग्लेशियर लेक्स आइस डैम्ड भी हो सकते हैं। आइस डैम्ड वाला पार्ट में बाद में आपको बताऊंगा। मोरेन डैम्ड भी हो सकते हैं या आइस डैम्ड भी हो सकते हैं। ठीक है? देन ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट जो है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट दो रीजन से होता है। एक तो ये इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ द स्पिल ओवर। बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया, स्पिल ओवर जो आउटबर्स्ट है ये मेनली ग्लेशियर के टुकड़े आने से या फिर लैंडस्लाइड की वजह से होता है। और जो आपका दूसरा है टनलिंग प्रोसेस से भी हो सकता है। अब मैं आपको टनलिंग प्रोसेस बताता हूँ। मुझे एक बात बताइए, ये जो मोरेन है, हम जो रिवर के अक्रॉस डैम बनाते हैं, उस डैम में से लीक होता है क्या? उस डैम में से वाटर लीक होता है। अगर डैम बहुत ओल्ड हुआ ना, तो उस डैम में से वाटर लीक होता है नीचे से। गुड मॉर्निंग ऋषभ। उस डैम में से नीचे से वाटर लीक होता है। अब ये मोरेन, हम जो रिवर पे डैम बना रहे हैं, उन डैम जैसा वाटर प्रूफ होता है क्या ये मोरेन? इट इज लूज डेब्रिस। मोरेन क्या है? लूज डेब्रिस है। तो क्या इस मोरेन के नीचे से, इस मोरेन के नीचे से थोड़ा थोड़ा वाटर ड्रेन हो सकता है क्या? मोरेन के नीचे से थोड़ा थोड़ा वाटर ड्रेन हो सकता है क्या? मैं आपको पूछ रहा हूं। हो सकता है। तो जब, अगर सपोज वाटर को बस इतना स्पेस मिला निकलने के लिए, तो उतने में से वो वाटर ड्रेन होता जाएगा। अब वो वाटर वहां से धीरे धीरे ड्रेन हो रहा है ना, धीरे धीरे वो स्पेस क्या बनता जाएगा? बढ़ता जाएगा।
तो वहां पे एक टनल बनेगा। तो इसे हम कहते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट बिकॉज ऑफ टनलिंग प्रोसेस। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट बिकॉज ऑफ टनलिंग प्रोसेस। यस, पहले सीपेज होगा सौरभ पाटिल और उसके बाद एकदम से बहुत ज्यादा वाटर निकल जाएगा, बहुत ज्यादा वाटर निकल जाएगा, इसे कहते हैं टनलिंग प्रोसेस। तो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट टनलिंग प्रोसेस से भी हो सकता है, और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट आपका जो है वो स्पिल ओवर से भी हो सकता है। तो एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज स्पिल ओवर एंड व्हाट इज टनलिंग प्रोसेस? सभी को ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट के दो रीजन समझ में आ गए, स्पिल ओवर एंड टनलिंग प्रोसेस सभी को समझ में आ गए? इफ यस, मैं फिर से थोड़ा वापस जाता हूं, आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं। दिस इज बिलो मोरेन, नॉट एग्जैक्टली अंडरग्राउंड रमनदीप, लेकिन जो वाटर लेवल है और उस वो जिसकी वजह से डैम हुआ है ना, उनके नीचे से अगर टनल फॉर्म होके वाटर जा रहा है तो वो टनलिंग प्रोसेस होता है। तो पहला पॉइंट, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट इज इट अ डिसास्टर? ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट इज इट अ डिसास्टर? आयशा से, क्या ये डिसास्टर है? यस, इट इज अ डिसास्टर। मैं करता हूं आनंद। गुड मॉर्निंग दीपा। गुड मॉर्निंग सर, यहाँ पर 2G नेटवर्क है एंड अनअकैडमी पर ओपन नहीं होता, और कोई और वे है टेस्ट ज्वाइन करने का, तो प्लीज प्लीज गाइड मी सर। नहीं आयशा, आपको हाई स्पीड इंटरनेट ही लगेगा। यस, इट इज अ डिसास्टर। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट किस वजह से होता है? रीजन बताइए मुझे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट के। एक तो इट हैपन्स बिकॉज ऑफ स्पिल ओवर, एक तो इट हैपन्स बिकॉज ऑफ स्पिल ओवर, एंड नंबर टू इट हैपन्स बिकॉज ऑफ टनलिंग प्रोसेस। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ टनलिंग प्रोसेस। अब मैं आपको पूछने जा रहा हूं, ग्लेशियल लेक्स बनते क्यों है? ग्लेशियल लेक ऐसे एरिया में बनते हैं जहां पे ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है। रिट्रीटिंग ग्लेशियर के एरिया में आपको ग्लेशियल लेक्स मिलेंगे, और ग्लेशियल लेक दो तरीके से डैम होते हैं। नंबर वन बताइए, कौन से दो तरीके से ग्लेशियल लेक्स डैम होते हैं, बताइए। चलो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस। क्विकली। तो वो दो ये है, एक तो ये ग्लेशियर लेक्स बनते हैं बिकॉज ऑफ मोरेन, आइदर दे कैन बी मोरेन डैम, दे कैन बी मोरेन डैम, और दे कैन बी आइस डैम। मोरेन डैम हो सकते हैं या आइस डैम हो सकते हैं। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? यहां तक सभी को क्लियर हुआ? आपका जो इशू है ना आनंद, टनलिंग का आएगा वो और बाद में मैं आपको बता दूंगा। तो ग्लेशियर लेक, मोरेन डैम, टनल डैम, स्पिल ओवर एंड टनलिंग प्रोसेस यहाँ पे हो गया। हम आगे जा रहे हैं। अब देखिए, ये जो न्यूज थी ना, क्या है, लेसन्स फ्रॉम लद्दाख ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। अब ये ज्ञान नाम का लेक है, वो तो बहुत छोटा लेक है, लेकिन आपको ये लद्दाख का मैप पता होना चाहिए। दिस इज पैंगोंग सो लेक, दिस इज सो मोरीरी लेक, एंड दिस इज सो कार लेक। मुझे बताइए रिसेंटली विच लेक इन लद्दाख बिकेम रामसर साइट? रिसेंटली रिसेंटली वन ऑफ द लेक इन लद्दाख बिकेम रामसर साइट। तो बताइए कौन सा है वो लेक जो रामसर साइट बना? आप लोग बताओगे। तो दिस इज सो मोरीरी लेक, दिस इज पैंगोंग लेक, दिस इज सो कार लेक, या इसे आप सो पैंगोंग सो लेक भी कहते हो। तो ये तीन लेक्स याद रखिए। देन याद रखिए हॉट स्प्रिंग, always in news because of the tension between India and China. Nubra Valley, always in news because of tension between India and China. Then Khardungla Pass, always in news once in a while in UPSC. Then उसके बाद आपका ये पैंगोंग से लेक तो है ही, सो मोरीरी भी है, सो कार लेक भी है, सोकार, सोकार लेक, वेरी गुड। सो ये है आपका रामसर साइट, ओनली रामसर साइट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, सोकार। जसकार रिवर देखिए, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, और ये पूरी इंडस रिवर यहाँ पे फ्लो हो रही है। और यहाँ पे टैंगलैंगला पास, चांगला पास, वारीला पास, खारडुंगला पास, ये सारी पासेस देख लीजिए। नामचांगला पास, these are the different passes।
ये पर्पसफुली मैंने आपका मैप लिया, यहाँ पे ग्या लेक यहाँ पे नहीं है। 42nd रामसर साइट इन इंडिया, राइट ऋषभ। आगे चलिए, सुनिए अब बहुत केयरफुली सुनना है। अब ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हुआ था 2014 में, अब है 2020 में। न्यूज आई 8 नवंबर 2020 में, न्यूज मतलब द हिंदू के साइंस टेक्नोलॉजी पेज में ये न्यूज आई कि लेसन्स फ्रॉम लद्दाख ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। अगर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट 2014 में हुआ तो भाई साहब हम ये 2020 में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 2014 के ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट के बाद जर्मनी के रिसर्चर्स ने रिमोट सेंसिंग डाटा की हेल्प से ये जो ग्याल ग्लेशियल लेक है इसकी इवोल्यूशन को स्टडी किया, और बाद में उन्होंने रीजन बताया कि इस ग्लेशियल लेक का आउटबर्स्ट 2014 में क्यों हुआ। ग्या लेक क्या ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट 2014 में क्यों हुआ, इसका रीजन 2020 में जर्मन रिसर्चर्स ने बताया विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग डाटा। और इस रिमोट सेंसिंग डाटा की हेल्प से उन्होंने इस लेक का इवोल्यूशन सर्च किया और उस बेस पे उन्होंने बताया। तो आपको पता है, मुझे बताइए कौन से दो रीजन होते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट के लिए? व्हाट आर द टू रीजंस फॉर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट? उसमें से एक ही रीजन, उन दोनों में से एक ही रीजन होगा इस क्या ग्लेशियल लेक के आउटबर्स्ट को। तो गाइस the two reasons are number one, the guys so guys the two reasons are number one, बोलो बोलो, नंबर वन बोलो बोलो, और नंबर टू। मैं आप ही से आंसर दूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, आपको आना चाहिए। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें। वेरी गुड आयशा एंड रमनदीप, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है रमनदीप, खुशबू, ऋषभ एंड आयशा। एक तो स्पिल ओवर से हुआ होगा या फिर टनलिंग की वजह से हुआ होगा, आइदर स्पिल ओवर और टनलिंग प्रोसेस, इन दोनों में से एक रीजन की वजह से ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हुआ होगा। वेरी गुड, सुनिए तो in August 2014, glacial lake outburst flood hit the village of Gya in Ladakh, destroying houses, fields, and bridges. Using remote sensing data, researchers from Germany have mapped the evolution of Gya glacial lake and known the cause of the flood. In a paper recently published, उन्होंने कहा illustrates the problem of potentially hazardous lakes being overlooked. चलो अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको इस पूरी स्लाइड में से आपको एक पॉइंट याद रखना है, ग्या लेक इज लोकेटेड इन लद्दाख। आप पूरा गूगल छान मारो, पूरा गूगल छान मारो, लेक्स इन लद्दाख, लेक्स इन लद्दाख, लेक्स इन लद्दाख, कहीं पे भी आपको ग्या लेक देखने को भी नहीं मिलेगा, लेकिन ग्या लेक द हिंदी में यूज होता है। तो ये जल्दी किसी को मिलेगा नहीं, हमें मिला है तो हमें याद रखना है ग्या लेक इज लोकेटेड इन लद्दाख। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। सो मोरारी पूरी दुनिया को पता है, सो कार अभी पूरी दुनिया को पता चल गया, पैंगोंग सो पूरी दुनिया को पता है, पता वो क्या नहीं है, ग्या लेक पता नहीं है। तो अब मुझे बताइए मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी दे सकती है ना, सो कार की वजह से लद्दाख न्यूज में, ग्या की वजह से लद्दाख न्यूज में, तो ग्या लेक इज लोकेटेड इन लद्दाख, ये आपको इस स्लाइड से याद रखना है। वी आर गोइंग अहेड। तो अब हम डिस्कस करेंगे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। सुनिए, अ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड इज अ रिलीज ऑफ मेल्ट वाटर from a moraine or ice dammed glacial lake due to dam failure। सिंपल सी बात है, ग्लेशियल लेक एक तो मोरेन डैम्ड होते हैं या आइस डैम्ड होते हैं। जब किसी भी रीजन से ये डैम फेल हो जाता है, आइस डैम हो या मोरेन डैम, जब ये डैम फेल हो जाता है तो उस डैम के फेल होने की वजह से ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट होता है, और उसे हम कहते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। उसे हम क्या कहते हैं? ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का रीजन है मेल्ट वाटर रिलीज होना मोरेन और आइस डैम लेक में से बिकॉज ऑफ डैम फेलियर। और जब ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फेलियर होता, फ्लड होता है, जब ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है, it results in catastrophic flooding in downstream which has social impact, economic impact and geomorphic impact। वो ग्या लेक में हाउस डिस्ट्रॉय हो गए,
फील्ड्स डिस्ट्रॉय हो गए, ब्रिज डिस्ट्रॉय हो गए, सब डिस्ट्रॉय हो गए ना, तो सोशल इम्पैक्ट हुआ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ और जियोमार्थिक इम्पैक्ट तो होगा ही। वो पूरा का पूरा मोरेन का जो डेब्रिस है ना, वो पूरा का पूरा वो मोरेन का डेब्रिस ये मेल्ट वाटर लेकर आएगा अपने साथ, तो इट विल बी ए डेब्रिस लेडन फ्लड, इट विल बी ए डेब्रिस लेडन फ्लड। क्लियर? तो मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन बता दी, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। वी आर गोइंग अहेड। अब देखिए, देयर आर थ्री मेन फीचर्स, फीचर्स हाँ, वी आर नॉट सेइंग रीजंस, रीजंस तो दो ही है। देयर आर टू रीजंस फॉर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, वन इज स्पिल ओवर एंड अनदर इज टनलिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे ये फीचर्स बता रहे हैं, थ्री मेन फीचर्स ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। दे आर सडन, ग्लेशियर, इसे हम आउटबर्स्ट कह ही रहे हैं बिकॉज इट इज सडन, दे आर सडन, दे आर रैपिड, क्योंकि ग्लेशियर लेक ऐसे स्लोप पे लोकेटेड होते हैं, वो डैम्ड है मोरेन और आइस की वजह से, अदरवाइज वो निकाल दो आप तो एकदम फास्ट स्पीड में वाटर नीचे आएगा। तो दे आर रैपिड एंड दे रिजल्ट इन लार्ज डाउनस्ट्रीम रिवर डिस्चार्जेस, क्योंकि एकदम से अगर वो डैम ही फेल हुआ है, लेक का पूरा वाटर बहुत ही कम समय में नीचे चला जाएगा, तो रिवर में क्या हो जाएगा, लार्ज डिस्चार्ज आएगा। आपको एक बात मैं बताऊं, यहाँ पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट तो उसका रीजन नहीं था, लेकिन आपको अगर ये इमेजिन करना है, ये तीनों फीचर्स अगर आपको इमेजिन करने हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के, तो जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर केदारनाथ डिजास्टर। केदारनाथ में जो डिजास्टर हुआ ना, जो फ्लड्स आए, वो फ्लड सडन थे या नहीं? यस। वो फ्लड में जो वाटर फ्लो हो रहा था वो रैपिडली फ्लो हो रहा था या नहीं? यस। रिवर में बहुत हेवी डिस्चार्ज आया था या नहीं? यस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो जो पानी था उसमें सब डेब्रिस था या नहीं? कितना, मतलब क्लीन वाटर बिल्कुल नहीं था, एकदम गंदा सा पानी था, उसमें बहुत ज्यादा डेब्रिस था। तो ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट एग्जैक्टली उसी तरह से होते हैं। वहां पे जो आउटबर्स्ट हुए वो हेवी रेनफॉल की वजह से हुआ था। यहाँ पे जो आउटबर्स्ट होने वाला है सडन रैपिड एंड लार्ज डिस्चार्ज इन डाउनस्ट्रीम रिवर, इट विल बी बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। तो देखिए, नंबर वन आपको पता चला व्हाट इज ग्लेशियर लेक, नंबर टू आपको पता चला ग्लेशियर लेक्स क्यों बनते हैं, नंबर थ्री आपको पता चला ग्लेशियर लेक को डैम कैसे किया जाता है, डैम्स कैसे बनते हैं, नंबर फोर आपको पता चला ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट क्यों होता है, दो रीजन आपको पता चले, एंड नंबर फाइव आपको ये पता चला कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो फ्लड्स है उनके तीन फीचर्स है, उनके तीन फीचर है, सडन रैपिड एंड लार्ज डाउनस्ट्रीम रिवर डिस्चार्ज। कितना सही जा रहे हैं हम, कितना प्रॉपरली जा रहे हैं, एक एक चीज को हम हमारे ब्रेन में इम्पैक्ट इम्प्रिंट याद कर कर आगे निकल रहे हैं, और इन सब चीजों को हम लिंक कर रहे हैं एक एक चीज को। ठीक है, चलिए आगे। तो देख लीजिए आप यहाँ पे ग्लेशियर लेक, ग्लेशियर लेक, ग्लेशियल लेक, ग्लेशियल लेक, ग्लेशियल लेक, और इसके पीछे देखिए आपको कहीं पे भी ग्लेशियर नहीं दिखेगा। ठीक है, ये देखिए ग्लेशियर कितना पीछे, देखिए ग्लेशियर कितना पीछे, देखिए ग्लेशियर कितना पीछे, देखिए ग्लेशियर पीछे, ग्लेशियर पीछे, मतलब ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है, इसलिए ये ग्लेशियर लेक्स बने हैं। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने ये इमेज आपको शो की है। ग्लेशियर लेक्स आपको हिमालय में बहुत मिलेंगे, लद्दाख हिमालय में मिलेंगे, कश्मीर हिमालय में मिलेंगे, उसके बाद में आपको जो है सिक्किम हिमालय में मिलेंगे, सारे टाइप के हिमालय में आपको ग्लेशियर लेक्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये जस्ट एक बार अभी के लिए इमेजेस देख लीजिए, हम आगे जा रहे हैं। ग्लेशियर लेक्स ठीक है, आपको एक्चुअल कैसे होते हैं आगे। अब ये जो ग्लेशियर लेक्स है दे आर फॉर्म, देखिए देर आर टू मेन सेटिंग्स इन विच ग्लेशियर लेक्स फॉर्म, आर बिहाइंड मोरेन डैम्स और बिहाइंड आइस डैम्स, यू नो दिस। चलिए आगे, यू नो दिस। अब हम जाते हैं आगे, चलो आगे का देखते हैं। अब ये जो मोरेन डैम लेक्स है दे फॉर्म ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ ग्लेशियर रिट्रीट फ्रॉम द मोरेन। देख लीजिए मोरेन डैम जो लेक है, यहाँ पे देखिए ग्लेशियर अपने एंड मोरेन से रिट्रीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये ग्लेशियर लेक बना। और तो याद रखिए मोरेन डैम लेक कब बनते हैं, बिकॉज ऑफ द रिट्रीटिंग ग्लेशियर।
Very important for your prelims, guys. Very, very important. This line is very, very, very important for your prelims 2021. Moraine dam lakes form during periods of glacier retreat from a moraine. As glacier margin retreats, water collects in the topographic low. Yes, ग्लेशियर की वजह से वहां इरोजन हुआ है, तो वहां पे एक लो बना हुआ है, डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसे हम टोपोग्राफिक लो कहेंगे. तो water collects in the topographic low between the ice front and the abundant frontal and or lateral moraine. ठीक है. Most existing moraine dam lakes, okay, most existing moraine dam lakes formed when mountain glaciers began to retreat from large moraine ridges constructed during little ice age. तो अब जितने भी आपको मोरेन डैम लेक मिल रहे हैं ना इंडिया में, most of these moraine dam lakes, they are formed because of the retreating glaciers of little ice age. Little ice age के ड्यूरिंग ये मोरेन डैम लेक बने या ग्लेशियल लेक्स बने हैं, ग्लेशियल लेक्स बने हुए हैं. तो यहाँ पे इन्होंने इंजात्सो, ये नेपाल का लेक है, छोड़ दो. तो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, मोरेन डैम जो लेक है, दे आर फॉर्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्लेशियर रिट्रीट. ये पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, मोस्ट ऑफ द करंट मोरेन डैम लेक्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द लिटिल आइस एज. मोस्ट ऑफ द मोरेन डैम लेक्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द लिटिल आइस एज. वी आर गोइंग अहेड. चलो ये देख लीजिए, अब बहुत प्यारा सा एग्जांपल है. देखिए, ये है आपका ग्लेशियर, कहीं यहाँ पे होगा. ठीक है, ये रहा ग्लेशियर, ये पीछे रिट्रीट हो रहा है, ग्लेशियर पीछे पीछे जा रहा है. ठीक है, ये लेक फॉर्म हुआ, ये लैटरल मोरेन है. ठीक है, ये भी लैटरल मोरेन है, इस तरफ ग्लेशियर है, और आगे जो दिख रहा है आपको ये एंड मोरेन और टर्मिनल मोरेन है. दिस इज एंड मोरेन और टर्मिनल मोरेन. तो ये हो गया मोरेन डैम लेक. और ये मोरेन डैम लेक क्यों बना? बिकॉज ऑफ द रिट्रीटिंग ग्लेशियर, बिकॉज ऑफ द रिट्रीटिंग ग्लेशियर. तो ये जो मोरेन डैम लेक है, ये इस तरह से इस सेटिंग में आपको मोरेन डैम लेक मिलता है. अब हो गया क्लियर? इस इमेज की वजह से आपको मोरेन डैम लेक एकदम परफेक्ट और क्लियर समझ में आ गया. चलिए आगे. अब हम बात करते हैं आइस डैम लेक्स की. आपको पता है आइस डैम लेक में यहाँ पे जो मोरेन दिख रहा है ना, इंस्टेड ऑफ दिस मोरेन हियर यू विल फाइंड आइस. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आइस मिलेगा. चलिए, सो in contrast to moraine dam lakes, ice dam lakes form when drainage is blocked by a glacier that advances or becomes thicker. Consequently, ice dam lake growth is closely related to glacier mass balance and climate. Ice dam lakes form wherever a glacier blocks the drainage of meltwater. Very beautiful, guys. Very, very beautiful. Ice dam lakes are formed when glacier blocks the flow of meltwater. When glacier blocks the flow of meltwater, तब आपका ग्लेशियर डैम्ड लेक बनता है, और ग्लेशियर डैम्ड ग्लेशियर लेक बनता है. तो मोरेन डैम लेक बनता है when glacier is retreating. आइस डैम लेक बनता है when glacier blocks the flow of melt water. Is that clear? दोनों का क्लियर हो गया? ठीक है. The main setting of ice dam lakes are shown in the diagram below. These include where a tributary valley is blocked by a trunk glacier, where a glacier from a tributary valley advances across the main trunk valley in openings between the lateral glacier margin and ice-free valley slides, and at the point where two glaciers join. अब मुझे बताइए, glacier isn't it the river of ice? Glacier is a river of ice. इसका मतलब अगर ये रिवर है, मतलब ग्लेशियर इज मूविंग, ग्लेशियर इज मूविंग. तो देखिए, ये एक मेन रिवर है और ये इसकी ट्रिब्यूटरी है. ये दोनों का यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस हो गया, दोनों का यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस हो गया.
तो जब ये ग्लेशियर आगे जा रहा था, सपोज यहाँ से मेल्ट होकर वाटर इधर जा रहा है, ये ग्लेशियर रिवर आगे आगे आ रही है और यहाँ पे इसने इस मेल्ट वाटर को क्या किया, डैम कर दिया, तो यहाँ पे ग्लेशियर लेक बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ग्लेशियल लेक। इसे और अच्छे से हम समझते हैं, देख लीजिए, आइस फ्लो, ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर, इन दोनों की यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस हुआ, आइस कॉन्फ्लुएंस हुआ और ये बन गया आपका ग्लेशियल लेक। बना या नहीं, बना या नहीं, ये देखिए ये स्ट्रीम्स फ्लो हो रहे हैं, ये स्ट्रीम फ्लो हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, ये इस ग्लेशियर के पास आ गए, यहाँ पे बन गया आपका ग्लेशियल लेक, राइट। देन ये देखिए रिट्रीटिंग ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर, मतलब ये ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है और इसका मेल्ट वाटर इधर आ रहा है, आगे उसको दूसरा ग्लेशियर मिला तो यहाँ पे ये डैम हो गया ग्लेशियल लेक। ग्लेशियल लेक, ये स्ट्रीम से फ्लो हो रहे, फ्लो हो रहे, आगे आइस मिला, ग्लेशियर मिला, डैम हो गए ग्लेशियल लेक। ये रिवर फ्लो हो रही है, फ्लो होते होते हो गया, उसको आगे एक ग्लेशियर मिला, यहाँ पे इस रिवर को डैम किया गया, ये हो गया ग्लेशियल लेक। देखिए इसी में कितने सारे आपके ग्लेशियल लेक बन गए। तो बेसिकली ग्लेशियल सॉरी आइस डैम्ड ग्लेशियल लेक्स आर फॉर्म्ड व्हेन द path of a melt water is blocked by the glacier। और ये ग्लेशियर कौन से ग्लेशियर इनका पाथ ब्लॉक करते हैं, those glaciers which are moving, those glaciers which are advancing, those glaciers which are acting as a river। समझ में आ गया ग्लेशियल लेक, आइस डैम्ड ग्लेशियर लेक सभी को समझ में आ गया। अब अगर आपको कोई भी पूछता है भाई बता मुझे तू ये मोरेन डैम्ड ग्लेशियर लेक्स क्या होते हैं, कैन यू एक्सप्लेन देम वेरी वेल। क्या आप अगर आपको कोई पूछता है कि भाई मुझे बता आइस डैम्ड ग्लेशियर लेक्स क्या होते हैं, क्या आप बता सकते हो। ये दोनों कंसेप्ट मैंने आपकी बहुत क्लियर कर ली। अब मैं आपको फिर से कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, आप लोग आंसर करोगे। पहला पॉइंट बताइए मुझे, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट के रीजन बताइए। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट रीजंस बताइए, रीजंस ऑफ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए। मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपको गाइस, ये जो ग्लेशियल लेक कितने टाइप के होते हैं, ग्लेशियल लेक्स कितने टाइप से बनते हैं, ये डैम किए जाते हैं, ये भी आप लोग दूसरे क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो इसका आंसर है नंबर 1 स्पिल ओवर और नंबर 2 टनलिंग प्रोसेस। इसका भी दो आंसर है, नंबर 1 दे कैन बी मोरेन डैम और दे कैन बी आइस डैम। They can be moraine dammed or they can be ice dammed। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों, मुझे 3 फीचर्स बताइए ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के। 3 फीचर्स ऑफ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जल्दी से बताइए इनके 3 फीचर्स। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस, आई एम वेटिंग। To moraine and ice dam, right? Now 3 features of glacial lake outburst flood। 3 features of glacial lake outburst flood बताइए जल्दी से, चलो। 3 फीचर से, they are sudden, they are rapid and they have large downstream river discharge। they have large downstream river discharge। वेरी गुड नीलम, समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए अब लास्ट में क्वेश्चन आपको पूछने जा रहा हूँ गाइस, द लास्ट क्वेश्चन, फिर हम आगे जाएंगे। मुझे बताइए मोरेन डैम लेक कब क्यों बनते हैं, मोरेन डैम ग्लेशियल लेक कब बनता है। When does the moraine dammed glacial lake is formed and when does the ice dammed glacial lake is formed। When does the moraine dammed glacial lake is formed and when does the
ice dammed glacial lake is formed? चलो आंसर करो. Very good. They are sudden, they are rapid, and they are large discharge downstream river discharge. Very good, Neelam Malik. Very good. चलो फिर दो क्वेश्चन मैंने आपको पूछे, उनका आंसर दो. आपको नहीं लगता ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है? और इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक पे यूपीएससी 1 करोड़% क्वेश्चन पूछेगी. आप देखिएगा यूपीएससी में इस पे पक्का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यूपीएससी का जो एग्जामिनर है ना, वो जब इसको पढ़ेगा वो खुश हो जाएगा, यार कुछ नया है, इंटरेस्टिंग है और हमें पता होना चाहिए. देखिए, मोरेन डैम लेक ग्लेशियर लेक्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द retreating ग्लेशियर. वेरी गुड. मोरेन डैम्ड glacial lakes are formed because of the retreating glacier, and ice dammed glacial lakes are formed. Ice dammed glacial lakes are formed because, बताइए किस वजह से बनेंगे ice dammed glacial lakes? चलो जल्दी बताओ. Ice dam forms when river clashes from moving ice glacier, or you can see when meltwater path is blocked by the moving glacier or advancing glacier. When drainage blocked by glacier making deeper and advancing. Yes, when the advancing glacier blocks the path or way of a meltwater, तो उसके बाद ice dam lake glacial lakes बनते हैं. Wow, guys, मुझे खुद पे बड़ा नाज हो रहा है कि मैंने आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन किया, बताया, बड़ा मजा आया ये बताने में. ठीक है, चलिए अब हम आगे जाते हैं. नाउ व्हाई मोरेन डैम्स और आइस डैम्स फेल? क्योंकि हमने पहले ही देखा था गाइस, हमने यहाँ पे देखा था कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो है ना, दे हैपन्स बिकॉज ऑफ द glacial lake outburst flood, they happens because of due to dam failure, right? Glacial lake outburst floods happens due to dam failure. अब ये डैम फेलियर क्यों होते हैं? अब ये डैम फेलियर क्यों होते हैं? डैम तो दो, ये एक आइस डैम है और दूसरा आपका क्या है? श्री श्रुति सुब्रमण्यम. दूसरा है आपका आइस डैम एंड मोरिन डैम. ये फेल क्यों होते हैं? अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से, बड़े लाजवाब तरीके से हम उसको डिस्कस करेंगे. देखिए, मोरेन डैम फेलियर क्यों होता है? मोरेन डैम्स टेंड टू बी नैरो एंड शार्प क्रेस्टेड. यस, मोरेन जो है ना, आपको मोरेन इस तरह से मिलेगा. मोरेन डैम नैरो होता है, ऐसा थिक नहीं होता बहुत ज्यादा. हेलो डेविल्स म्यूजिक. वो नैरो होते हैं और वो ऐसे शार्प क्रेस्टेड होते हैं, शार्प क्रेस्टेड, है ना. As such, they are more likely to fail than broader dam types such as ice contact fines or landslides. हम देखते हैं इनको, देख लीजिए. कहाँ गया यार? चलिए वेट, गिव अ मिनट गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको इसे प्रॉपर तरीके से बताता हूँ. देखिए, मोरेन जो होते हैं ना, नैरो और शार्प क्रेस्टेड होते हैं. नैरो और शार्प क्रेस्टेड होते हैं, ठीक है. तो इन मोरेन्स के केस में होता क्या है, दे आर मोर लाइकली टू फेल, क्योंकि वो लूज होते हैं. आइस जैसे शार्प और एकदम प्रॉपर नहीं होते, वो लूज होते हैं, शार्प क्रेस्ट होती है उनकी, अनकंसोलिडेटेड मैटर होता है, तो नेचुरल है कि उनके फेलियर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं. मोरेन डैम फेलियर्स, दे आर लाइकली टू फेल than broader dam types such as ice contact fans or landslides. आके देखिए, most moraines are made up of loose. Most moraines are made up of loose, poorly sorted, permeable sediment and some contain ice core. आप इसे एग्री करते हो? Most moraines are made up of loose, poorly sorted and permeable sediment. क्या आप इसे एग्री करते हो? और ये मोरेन में ये सारा सेडिमेंट कौन लेकर आया है? कोई बता सकता है? Who brought this sediment into the moraine? कोई बता सकता है मुझे? चलो जल्दी बताओ. अगर यस तो बताओ जल्दी से. Most moraines are made up of loose, poorly sorted, permeable sediment. भारती कुशवाहा, गुड मॉर्निंग. भारती, वी स्टार्ट क्लास एट 11 AM. आप लेट हो गई. चलो बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस.
तो यस, मोस्ट मोरेन्स आर लूज, पुअरली सॉर्टेड एंड परमिएबल सेडिमेंट, और ये सब किसने डिपॉजिट किए? इट इज अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, और इट इज अ ग्लेशियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, और ये डिपॉजिट किए मूविंग ग्लेशियर ने। इनको किसने डिपॉजिट किया है? ग्लेशियर ने। अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स आर ससेप्टिबल टू फेल्यूर्स। Unconsolidated sediments are susceptible to failure, especially if saturated, while melting of ice cores may cause moraines to subside over time. अब इसमें हमने देखा है कि इसमें आइस कोर्स भी होती है। अगर ये आइस मेल्ट हो गया, जैसे ये एक रॉक है, ये दूसरा रॉक है, और इसके नीचे ये आइस है। अब जब ये आइस मेल्ट हो जाएगा, जब ये आइस मेल्ट हो जाएगा तो उससे होगा क्या? जैसे ये आइस मेल्ट हो गया, ये दोनों फ्री हो जाएंगे और मूव हो जाएंगे। हो गया मोरेन फेल, मोरेन डैम फेल हो गया। सो दे आर मेड अप ऑफ लूज, पुअरली सॉर्टेड, परमिएबल सेडिमेंट एंड कंटेन आइस कोर। जैसे ही आइस कोर मेल्ट हो जाएगा, दे लीड टू द मोरेन टू सबसाइड ओवर टाइम। Despite these weaknesses, where moraine is low, wide, and armored by a large rock material, it may survive intact for hundreds or even thousands of years. It may survive for hundreds or thousands of years. Clear? Right, Ramandeep. तो देखिए, मोरेन, क्यों मोरेन डैम मोर ससेप्टिबल टू फेलियर है? बिकॉज दे आर लूज, मोरेन इज लूज, मोरेन इज unconsolidated, moraine is permeable, moraine is poorly sorted, moraine is narrow, and moraine has sharp crests. In some reasons से moraine dammed glacial lakes या moraine dams are more susceptible to failure than the ice dams. और अगर यही moraine लो होगा, मतलब उसकी हाइट कम होगी, वाइड होगा, नैरो नहीं होगा, वाइड होगा, और अगर उसमें लार्ज रॉक मटेरियल्स होगा, तो ऐसे मोरेन डैम्स जो है वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक सरवाइव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, which of the following dams are more susceptible to failure? One, moraine dams, number two, ice dams, तो आपका आंसर क्या आएगा? Your answer will be moraine dams, because moraine dams are more susceptible. Reasons आपको पता है, we are going ahead. अब मोरेन डैम के फेलियर्स के अलग अलग उन्होंने टाइप्स बताए हैं। ये डिस्प्लेसमेंट वेव्स हो, या फिर ब्रीच इंसिजन हो, या फिर मोरेन डिग्रेडेशन हो, ये सारे के सारे नॉर्मली एग्जांपल्स आप बताओगे। ये स्पिलओवर का एग्जांपल है या आपके टनलिंग का, या आप बताओगे। अब मोरेन डैम के फेलियर के उन्होंने टाइप्स बताए, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ मोरेन डैम फेलियर। नंबर वन, displacement waves. Outburst floods. Outburst floods in moraine dam settings are often caused by the sudden input of material into a lake, causing displacement of water and overtopping of the dam. तो डिस्प्लेसमेंट वेव्स मोरेन डैम फेलियर के लिए कब कॉज होती है, या डिस्प्लेसमेंट वेव्स आती ही कब है? जब सडन इनपुट ऑफ मटेरियल होता है ग्लेशियल लेक में। सडन इनपुट ऑफ मटेरियल इन अ ग्लेशियल लेक, तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट वेव आती है, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट वेव कैन मेक मोरेन डैम टू फेल, एंड दैट कैन लीड टू मोरेन डैम फेलियर, एंड दैट विल लीड टू ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो मुझे बताइए, डिस्प्लेसमेंट वेव इज एन एग्जांपल ऑफ स्पिल ओवर और टनलिंग प्रोसेस। इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्पिल ओवर, ये देख लीजिए। Displacement waves are commonly triggered by avalanches or rock falls or calving of lake terminating glacier as shown below. देख लीजिए, ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर यहाँ से टूटकर इसमें गिर गया, ये जैसे इसमें गिर, इसे कहते हैं काल्विंग। इसे क्या कहते हैं? काल्विंग कहते हैं। देख लीजिए, काल्विंग ऑफ अ लेक टर्मिनेटिंग ग्लेशियर, ये जैसे यहाँ पे गिर गया, इनपुट आ गया मटेरियल का, ओवरटॉपिंग हो गई और मोरेन डैम फेल हुआ, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेव फेलियर, और डिस्प्लेसमेंट वेव व्हिच लीड्स टू फेलियर ऑफ मोरेन डैम, एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्पिल ओवर। इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्पिल ओवर। हो गया आप परफेक्ट, प्रो बन गया आप इस टॉपिक में। आप नेक्स्ट, अदर ट्रिगर्स, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वेव आपकी अवलैंच की वजह से आ सकती है, रॉक फॉल की वजह से आ सकती है, या काल्विंग की वजह से भी आ सकती है, या फिर
रैपिड इनपुट ऑफ मेल्ट वाटर की वजह से भी, अगर ऊपर ग्लेशियर के अपस्ट्रीम से समर सीजन में रैपिड इनपुट ऑफ मेल्ट वाटर हो रहा है, तो उससे भी स्पिल ओवर हो सकता है। हेवी रेनफॉल की वजह से भी स्पिल ओवर हो सकता है। स्नो मेल्ट इवेंट से भी स्पिल ओवर हो सकता है, या इवन अर्थक्वेक से भी मोरेन डैम फेल हो सकते हैं। लेकिन अर्थक्वेक से अगर मोरेन डैम फेल होते हैं, you will not consider that under spill over, or you will not consider that under tunneling process। वो एक अपने आप में एक अलग ही तरीका होगा जिसकी वजह से वो लेक का आउटबर्स्ट होता है बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। या ऐसे भी हो सकता है, अर्थक्वेक की वजह से स्पिल ओवर भी हो सकता है, या अर्थक्वेक की वजह से टनलिंग भी हो सकती है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। रीजन दो ही रहेंगे, लेकिन अर्थक्वेक में दोनों हो सकता है। लेकिन जब हेवी रेनफॉल होगा तो स्पिल ओवर से ही होगा, स्नो मेल्ट होगा तो स्पिल ओवर से ही होगा, रैपिड इनपुट ऑफ मेल्ट वाटर होगा तो स्पिल ओवर से ही होगा, कार्विंग होगी तो स्पिल ओवर ही होगा, देन एवलांच होगी तो स्पिल ओवर ही होगा, रॉकफॉल होगा तो स्पिल ओवर ही होगा। चलिए आगे, मोरेन डैम फेलियर। दूसरा होता है ब्रीच इंसिजन। ब्रीच होना, डैम अगर ब्रीच हो जाए तो आप उसे क्या कहोगे, ब्रीच इंसिजन ही कहोगे। वंस ओवरटॉप अ प्रोसेस कॉल्ड ब्रीच इंसिजन कैन अकर। देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका ग्लेशियल लेक है, ये मोरेन है, ये रिट्रीटिंग ग्लेशियर है, और इस मोरेन की वजह से यहाँ पे डैम हो चुका है। तो पहले क्या हुआ, एवलांच या कुछ भी रीजन से यहाँ पे ओवरटॉपिंग हुई, डिस्प्लेसमेंट वेव आई। अब जब ये डिस्प्लेसमेंट वेव इस मोरेन के ऊपर से जाएगी तो इस मोरेन को ये क्या करेगी, ब्रिज करेगी, और इस ब्रिज को ही हम कहते हैं ब्रिज इंसिजन। यू कैन नॉट कॉल दिस टनलिंग, दिस इज स्पिल ओवर ओनली। स्पिल ओवर की वजह से ब्रिज इंसिजन हुआ, और ब्रिज इंसिजन से फिर आउटबर्स्ट हुआ, लेक आउटबर्स्ट। तो दिस इज अ टाइप ऑफ मोरेन डैम फेल्यूर। ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ मोरेन डैम फेल्यूर गाइस, प्लीज रिमेंबर दिस। इट इज अ टाइप ऑफ मोरेन डैम फेल्यूर, ब्रिज इंसिजन या डिस्प्लेसमेंट वेव। और ये दोनों किसके टाइप है, स्पिल ओवर के ही टाइप है। कितना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है गाइस। अब आप जब भी लद्दाख में जाओगे या कहीं पे भी जाओगे, आप ऑब्जर्व करोगे और खुद ही सोचोगे, अरे ये लेक आइस डैम है, अरे ये लेक मोरेन डैम है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप लोग मुझे बताओगे, सो मोरीरी ये जो लेक है लद्दाख में, वेदर इट इज मोरेन डैम और आइस डैम। दूसरा है सो कार नाम का जो लेक है लद्दाख में, वेदर इट इज आइस डैम और मोरेन डैम। और पैंगोंग सो लेक किस टाइप का लेक है, आप मुझे बताओगे। इन तीनों लेक का ओरिजिन आप बताओगे, या रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज थ्री लेक्स। ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे क्लास में बताओ कल, या फिर पर्सनली मैसेज करके भी आप लोग मुझे बता सकते हो। क्लियर। तो मोरेन डैम ब्रिज या मोरेन डैम फेलियर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट वेव से, मोरेन डैम फेलियर हो सकता है ब्रिज इंसिजन से। तो देखिए, once overtopped a process called bridge incision can occur. This occurs as water flowing across the dam surface erodes a channel into moraine, starting a positive feedback process where channel incision allows more water to escape. ब्रिज इंसिजन नेचुरल एंड ह्यूमन कॉज दोनों से होता है ना सर? हाँ बिल्कुल कपिल, बिल्कुल बिल्कुल। And the higher discharges leaving the outlet encourage greater rates of erosion. This process allows a moraine dam lake to drain very rapidly. It also adds large volumes of unconsolidated sediment to the flood waters, which may then develop into highly destructive debris flows. याद रखिए, अगर मोरेन डैम फेलियर ब्रिज, अगर ब्रिज इंसिजन हुआ, मोरेन डैम फेलियर में अगर ब्रिज इंसिजन हुआ गाइस, तो दैट ब्रिज इंसिजन की वजह से जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड आएगा, दैट विल बी वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स। ब्रिज इंसिजन की वजह से अगर कोई फ्लड आया, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड आया, दैट विल बी वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स। प्लीज रिमेंबर बी, क्योंकि ब्रिज इंसिजन में डेब्रिस लेडन होगा, दैट वाटर विल बी डेब्रिस लेडन, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। इजंट इट कूल, इजंट इट राइट? कितना सही से अभी हमने कर लिया, ब्रिज इंसिजन डिस्प्लेसमेंट वेव हो गया, ब्रिज इंसिजन हो गया। देन मैंने आपको दोनों की कंसेप्ट बता दी, मोरेन डैम फेलियर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद थर्ड रीजन हो सकता है, तो देखिए मोरेन डैम फेलियर के लिए पहला रीजन है डिस्प्लेसमेंट वेव।
दूसरा रीजन है ब्रिज इंसिजन एंड तीसरा रीजन है मोरेन डिग्रेडेशन। मोरेन डिग्रेडेशन से भी मोरेन डैम फेलियर हो सकता है। क्या है ये? पाइपिंग द सीपेज ऑफ वाटर एंड सेडिमेंट थ्रू अ मोरेन वीकनिंग इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर और द मेल्टिंग ऑफ आइस कोर्स कैन ट्रिगर मोरेन कोलैप्स और लोअर द मोरेन to the point where a smaller displacement wave will cause overtopping and breach incision। अब मोरेन डिग्रेडेशन में टनलिंग प्रोसेस भी हो सकता है गाइस। मोरेन डिग्रेडेशन में टनलिंग प्रोसेस भी हो सकता है या स्पिल ओवर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो मोरेन डिग्रेडेशन इस रीजन से अगर मोरेन डैम फेलियर हो रहा है तो दैट कैन लीड टू द ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स either because of spill over or that can also lead to the glacial lake outburst flood because of the tunneling process। तो जो ग्या लेक है ना लद्दाख में, द ग्या लेक दैट इज प्रेजेंट इन द लद्दाख, उसमें जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हुआ दैट इज बिकॉज ऑफ द टनलिंग प्रोसेस। तो मोरेन डिग्रेडेशन। ओके, अब हम नेक्स्ट हमें जाना है आइस डैम फेलियर पे। उससे पहले मुझे बताइए कितने तरीके से ग्लेशियल लेक्स डैम्स होते हैं। ग्लेशियल लेक को डैम कितने तरीके से किया जा सकता है? ग्लेशियल लेक्स आर डैम्ड बाय हाउ मेनी टाइप्स? दे आर डैम्ड बाय, उन दोनों के आप नाम बताओगे, नंबर 1 एंड नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है आपके लिए, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट जो फ्लडिंग है इसके दो रीजन बताइए कौन से हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, ये जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स होते हैं उनके 3 फीचर आप लोगों को मुझे बताने हैं, 1, 2 एंड 3। ये 3 क्वेश्चंस के आंसर दो। आइस डैम लेक वी विल डिस्कस टुमारो। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, राइट। रुद्रवाड़िया, वेरी गुड। ग्लेशियल लेक एक तो मोरेन डैम हो सकते हैं या आइस डैम हो सकते हैं। उसके बाद ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग स्पिल ओवर से हो सकती है या टनलिंग से हो सकती है। उसके बाद ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, दे आर सडन, दे आर रैपिड एंड they have large downstream river discharge। ये हो गया आपका। अब मुझे बताइए मोरेन डैम फेलियर के 3 रीजन बताइए। प्लीज टेल मी द 3 reasons for moraine dam failure। 3 reasons for moraine dam failure। 3 reasons for moraine dam failure। चलो जल्दी से बताओ। This will be the last question। Number 1, displacement wave। Number 2, breach incision। Number 3, moraine degradation। अब आप मुझे बताइए क्या ये तीनों रीजन है? आर दीज 3 रीजंस फॉर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग? तो आंसर विल बी यस गाइस। स्पिल ओवर और टनलिंग ये प्रोसेस हो गई, लेकिन स्पिल ओवर और टनलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, जैसे स्पिल ओवर के लिए डिस्प्लेसमेंट वेव रिस्पॉन्सिबल है, ब्रिज इंसिजन रिस्पॉन्सिबल है, और स्पिल ओवर और टनलिंग दोनों के लिए मोरेन डिग्रेडेशन रिस्पॉन्सिबल है। अब डिस्प्लेसमेंट वेव किसकी वजह से आती है? एवलांच की वजह से आ सकती है, रॉकफॉल की वजह से आ सकती है, कार्विंग की वजह से आ सकती है। और ब्रिज इंसिजन की क्यों होता है? ब्रिज इंसिजन होता ही है डिस्प्लेसमेंट वेव की वजह से। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे गाइज। मुझे बड़ा मजा आया आज ये लेक्चर लेकर। आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड दिस ऑसम क्लास, ऑसम लेक्चर in which we are covering the basics or statics of the physical geography to current affairs। ये आपको कोई भी ज्योग्राफी का टीचर स्टैटिक पोर्शन में नहीं पढ़ाएगा। आपको ज्योग्राफी के टीचर स्टैटिक पोर्शन में मैक्सिमम क्या पढ़ाते हैं पता है आपको? ये वाली चीजें पढ़ाते हैं, स्कर, केटल लेक, आउटवॉश प्लेन, मोरेन एंड ऑल, ये सब पढ़ा देंगे आपको। लेकिन वो ग्लेशियर लेक के इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हमने करंट अफेयर से लिंक करके ये सब पढ़ा। कल मैं आपको आइस डैम लेक के बारे में बताऊंगा, उसके बाद ये ग्लेशियर के इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स भी हम कर लेंगे। ओके सर, डिजास्टर मैनेजमेंट को कब कवर कराएंगे आप? आयशा शेख, डिजास्टर मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, सो लेट्स सी व्हेन वी कैन कवर इट। ओके, अभी तो हमारा मेन फोकस करंट अफेयर और इन सब पे है, ठीक है। सो अब हम कल डिस्कस करेंगे आइस डैम लेक्स को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उनके फेलियर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड tomorrow। That's it for the day guys। Thank you very much for joining me। Before leaving guys, please subscribe to this telegram channel because अभी जो मैंने आपको पढ़ाया इसकी PDF फाइल इसी telegram channel पे अपलोड होगी।
प्लीज फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, बिकॉज जब आप इस अनअकैडमी प्रोफाइल को फॉलो करते हो तो वेन एवर आई एम कमिंग लाइव यू विल गेट नोटिफिकेशन एंड डेडिकेट योर हैट्स टू मी ऑन अनअकैडमी। ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। और जाते जाते आपको ये कोड याद रखना है, बिकॉज दिस SKUS कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर getting 10% discount on Unacademy subscription, whether you are going for Plus or Iconic। और एक बात important, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे कहीं पे भी अगर आपको कोड पूछा जाए तो यू आर गोइंग टू यूज दिस वायरल कोड ऑफ सक्सेस विच स्टार्ट्स विद सक्सेस एंड विच एंड्स विद सक्सेस, SKUS, बीच में कश्मीर यूनिवर्सिटी है। और लास्ट पॉइंट गाइज, अब इसके बाद हमारे 2 क्लास होने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास विल बी एट 1:30 PM and this 1:30 PM class will be on YouTube, and in this class we will be discussing concepts of environment and ecology in a very beautiful manner, in a very proper manner, जिसकी वजह से आपका environment ecology में conceptual part में कभी कुछ भी confusion नहीं होगा। और आज का लास्ट क्लास होगा, इस साल का लास्ट क्लास होगा 4 PM को, ये होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, जिसमें मैं मॉक टेस्ट कंडक्ट करूंगा। तो ये दोनों क्लास आपको मिस नहीं करने गाइस, पर्टिकुलरली ये 4 PM वाला क्लास को आपको लाइव ही अटेंड करना है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लाइव टेस्ट ऑफ दिस ईयर 2020। तो लेट्स मेक दैट मेमोरेबल। 4 PM की टेस्ट को हम मेमोरेबल बनाते हैं 2020 की। टिल दैट टाइम गाइस, बाय बाय।